Namaskar, all of you. How are you all? I hope you all are well at your home and you are also doing your studies. It is your computer class for class 5, chapter 6. Chapter name is Formatting in MS PowerPoint, part 2. In this chapter, we will discuss about to change the color of text, and there are so many type of text effects. So how we can use that text effects and what is the use of text effects. Next one is alignment of the text. So these three topics we will discuss in our today's class. In our last class, we have discussed about the that how you can change the text style and how you can change its size, and there are different presentation view of presentation. So first we will revise what we have discussed in our last class, and then we will discuss about these three topics. So for this, I'm opening PowerPoint presentation. With the help of this, we will understand the topic in a better way. Okay. So this is our presentation, and these all are the view of presentation which we have discussed already in our last class. These all are the views, like it is normal view, then it is outline view, then it is slide sorter view. नॉर्मल व्यू ये है जो आपको दिखाई दे रहा है. स्लाइड सॉर्टर व्यू में छोटी छोटी स्लाइड्स आ जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से. एंड नोट्स पेज में कुछ हम साथ में नोट्स भी ऐड कर सकते हैं. ओके, so these all are the different views of presentation. Now, and one more thing we have discussed in our last class, that is how we can change the font style and font size. Okay, so I'm going to show you that how you can change the font style and font size. Okay, so first of all we will do it in normal view. सबसे पहले हम इसको normal view में कर देते हैं वापस से. Now, like this, if you want to change any type of font style and any type of font size, then what will you do? First of all, you have to select the text which you want to change. जिस भी टेक्स्ट का आपको स्टाइल या साइज चेंज करना है, आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, लाइक दिस. यहाँ पे आपने माउस को रखा एंड देन आपने इसको सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से. ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया. इसके बाद में आप सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन होम टैब. ठीक है, यहाँ पे ये जो होम टैब है इस पर आप क्लिक करेंगे एंड फ्रॉम होम टैब यू कैन चेंज इट्स स्टाइल एंड इट्स साइज. ओके, सो दिस इज होम टैब. एंड होम टैब पे आप जाके पहले आपने इसको सेलेक्ट कर लिया जिसका भी आपको स्टाइल या साइज चेंज करना है. यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर दिया और यहाँ से इसका साइज चेंज कर दिया. ओके, so these were the topics which we have discussed in our last class. Now in today's class we will discuss about that how we can change the color of a text. So like it is your text, okay, and you want to change its color. So select this text and click on this. यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी कलर आपको सुटेबल लगता है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, आप वो कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो वो जो कलर है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, अगेन सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन क्लिक हेयर एंड यहाँ से आपको जो भी कलर अच्छा लगता है, लाइक येलो कलर अच्छा है तो येलो कलर आपने यहाँ से ले लिया. यू कैन सेलेक्ट एनी टाइप ऑफ कलर फ्रॉम हेयर. So like this you can change the text color. Click here like this. So like this you can change its color. Next topic is text effects. So there are so many type of text effects are there.
text effects is like you can make your text bold, you can make it italic, you can make it underline. So these are called the text effects. Okay, so for text effect, like आपको इसमें आपको अंडरलाइन देना है, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ में अंडरलाइन भी आए, तो आपने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके आपने यहाँ से यू पे क्लिक कर दिया। सो दिस यू इज फॉर अंडरलाइन। तो देखिए इस टेक्स्ट के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन आ गई है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट इफेक्ट्स। लाइक इन दिस स्लाइड आपको ये वाला जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को आप ये चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये इटैलिक हो जाए। इटैलिक मीन्स हल्का सा ये टिल्ट हो जाएगा, हल्का सा इटैलिक हो जाएगा। देखिए इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये हल्का सा घूम जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इटैलिक फॉन्ट्स। अगेन लाइक हेयर, अब यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर आपका टॉपिक है ये बोल्ड दिखाई दे, मीन्स थोड़ा सा डार्क दिखाई दे। तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके देखिए ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है ये आपका थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है। सो लाइक दिस यू कैन मेक योर टेक्स्ट बोल्ड। आप किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं लाइक दिस। इसको मैंने बोल्ड कर दिया और अब मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, तो देखिए इस टेक्स्ट के नीचे लाइनिंग आ गई, ये अंडरलाइन हो गया। नाउ आई हैव सेलेक्टेड दिस टेक्स्ट एंड आई मेक इट इटैलिक। तो इटैलिक करने से ये देखिए ये जो फॉन्ट है ये हल्का सा टेढ़ा हो गया और ये इटैलिक हो गया। सो दीज 3 टाइप ऑफ टेक्स्ट इफेक्ट्स आर देयर इन पावरपॉइंट। with the help of these text you can make your presentation more attractive and more visible। कई बार आपको कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करके दिखाना होता है कि यूज़र को देखते ही वो विजिबल हो जाए, तो उसके लिए आप अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम उसके लिए बोल्ड का यूज़ करते हैं कि यूज़र जैसे ही प्रेजेंटेशन को देखते ही उसे कुछ चीज़ें तो बोल्ड में अलग से दिखाई दे जाए, तो उसके लिए हम बोल्ड कर सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं इनका यूज़ हम अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव, अट्रैक्टिव और मोर विजिबल बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट topic is alignment. So first of all, what is alignment? So I'm showing you that this is the different type of alignment of our text. This is called align left, यानी कि आपको अपने टेक्स्ट को अगर राइट में रखना, सॉरी लेफ्ट में रखना है, तो आप यहाँ से इसको अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं। दिस इज फॉर अलाइन सेंटर। अगर आपको अपने टेक्स्ट को सेंटर में रखना है तो आप यहाँ से उसे सेंटर में रख सकते हैं। दिस इज फॉर अलाइन राइट। आपको अगर अपने टेक्स्ट को राइट में रखना है, आप अगर उसको राइट में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको राइट में कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स आपको अगर अपने टेक्स्ट को जैसे आपने लिखा है उसी तरीके से उसको रखना है आपको, या आपको आप ये नहीं चाहते कि ना तो वो लेफ्ट में हो, ना राइट में हो, ना सेंटर में हो, लेकिन वो दोनों तरीके से दोनों साइड से जस्टिफाई रहे, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं, जहाँ से फर्स्ट लाइन स्टार्ट हुई है वहीं से ही सेकेंड लाइन भी स्टार्ट हो। सो दिस इज कॉल्ड जस्टिफाई। सो दीज 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट आर देयर। मैं आपको शो करके दिखाती हूँ ये। यस, लाइक दिस इज आवर टेक्स्ट। ये जो एड अ फुटर यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारा कोई टेक्स्ट है, ठीक है। अब हमने इसको कहाँ रखा हुआ है, अभी ये लेफ्ट में है, लेकिन हमें इसको राइट में रखना है। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये राइट में आ गया है। या एक सेकेंड, हम कोई और टेक्स्ट लेते हैं जो पूरी विंडो पे हो। लाइक ये जो हमारा टेक्स्ट बुक्स है हम इसका साइज बड़ा कर देते हैं, जिससे क्या है हमारा जो टेक्स्ट है वो अगर मूव होगा वो तो वो पूरी विंडो पे आ जाए। मैंने इसको यहाँ तक वो कर दिया। अब देखिए अभी जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पे है। हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया एंड देन डू इट अलाइन राइट। तो राइट अलाइन करते ही क्या हुआ, ये देखिए बिल्कुल राइट में आ गया आपका।
और इसी को ही बोलते हैं राइट अलाइन करना। अब अगर आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। सो लाइक दिस यू कैन अलाइन एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट टू राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। अब जैसे ये हमने सेलेक्ट किया, अब इसको अगर हम राइट करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। मतलब राइट में ये एक ही जगह से पे एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी लाइनिंग्स आगे पीछे आ रही है। लेकिन अगर हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं तो देखिए लाइंस जो है वो एक पर्टिकुलर जगह से ही स्टार्ट हो रही है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टार्ट हो रही है और एक ही लोकेशन पे एंड हो रही है। मतलब जस्टिफाई हो गया ये कि लाइंस जो है वो यहीं से स्टार्ट होंगी और यहीं पर ही एंड होंगी। सो दिस इज कॉल्ड justify. So like this you can make your text like right, left and center and justify. Okay, so in today's class we have discussed about these topics. First of all we have discussed that how you can change the color of your text. So you will select this and then you can change your text color like this. And how you then there are some text effects like बोल्ड कर सकते हैं आप इस तरीके से, टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं और इटैलिक कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द टेक्स्ट इफेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इफेक्ट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। सो फॉर अलाइनमेंट you have to select the text and then you can make it center, then you can make it right and you can make it justify. So these are the three alignment of the text. So these three topics we have discussed today, that how you can change the color of text, text effects. These are three text effects. First is bold, second is italic and third is underline. And then alignment of the text. So there are different type of alignments like left, right, center and justify. So we have discussed these topics in our today's class. Remaining topics we will discuss in our next class. I will share your homework in your class group, so do complete your homework on time and do all the work in Interleaf notebook and submit your notebooks in the school accordingly. I will discuss remaining topics of this chapter in our next class. Till then, stay healthy, stay safe and keep learning. Thank you so much. Have a nice day.